संकल्प लिया कि दे विल गो टू विहार एवरी वीक ऑन संडे, बट आई डोंट सी दैट कमिटमेंट. Okay, anyway, Bhanteji, with your permission, we will start. Is it okay? We can start now. Bhanteji, are you there? If you can unmute yourself. Yes, I am there. Okay, okay. So with your permission, Bhanteji, we will start the Dhamayachana and Krishnan Panchasil. Again, everyone, thank you very much for joining today. Online Vihara. We do have the full agenda today. We have Dhammadesna. After that, kids motivational story. And we do have a speaker, B.D. Borkar Sahib is joining on the call today. And after that, there is a Q&A session. So with that, I will start the session with the Triratana Naman to Buddha, Dhamma and Sangha. Arhang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasam. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Okasa Vandami Bhante Bharat Ena Maya Kattang Sabha Aparadhang Khamtu Me Bhante. Dutiyampi Okasa Vandami Bhante Dvaratena Maya Kattang Sabha Aparadhang Khamtu Me Bhante. Tatyampi Okasa Vandami Bhante Dvaratena Maya Kattang Sabha Aparadhang Khamtu Me Bhante. खमतु खमामि सुखिता हुन्तु निरोगी हुन्तु निदुःख हुन्तु निब्बानस्य पच्चय हुन्तु. Bhante Okasa Aham Bhante Tisaranena Sah Panchaseelang Dhammam Yachami Anugraham Katva Silang Detame Bhante. Dutiyampi Okasa Aham Bhante Tisaranena Sah Panchaseelang Dhammam Yachami Anugraham Katva Silang Detame Bhante. Tatyampi Okasa Aham Bhante Tisaranena Sah Panchaseelang Dhammam Yachami Anugraham Katva Silang Detame Bhante. Yang ahang vadami tang vaditha. Bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang Dutiyampi gacchami. dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang Tatiyampi gacchami. dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang Tatiyampi gacchami. sanghang saranang gacchami. Ti saranaagamanang nitthitam. Bhante. Nati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu micchāchāra veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu iccāchārā veramani sikkhapadam samadhiyami. Musāvāda veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadam samadhiyami. Surameraya majjapamādathāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majja pramadhathana veramani sikkhapadam samadhiyami.
साधु 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 तीसरनेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन शील संपादे तब्बो। Bhante, sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Bhante ji. Now, on behalf of all the participants, I will request if Bhante can offer the Dhammadashna. साधु 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 साधु। सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी श्रावकों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली है, उन्हें भी वंदन। और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज जिस विषय के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे वो है डिटैचमेंट। ये हमारे शिष्य ने हमसे पूछा था कि बंते जी डिटैचमेंट पे कुछ बताइए, कैसे हो। तो डिटैचमेंट जिसे तब जरूरत पड़ती है जब व्यक्ति अटैच हो जाता है। अटैच के बाद ही डिटैचमेंट की बात शुरू होती है, और डिटैचमेंट की बात भी तब शुरू होती है जब जिससे अटैच्ड हो, जिससे आप अटैच्ड हो चुके हो, वो व्यक्ति से आपको दूर जाना है। और दूर जाना क्यों है? सरल सी बात है। कोई बात है जो आपको उसकी पसंद नहीं आ रही होंगी, या आपको अपने जीवन में कुछ नया चाहिए होगा। ये दो ही कारणों के कारण से डिटैचमेंट की बात आ जाती है। पर डिटैचमेंट जिसकी शुरुआत अटैचमेंट से होती है, और अटैचमेंट जिसको भगवान के पटी समुत्पाद में उपादान कह सकते हैं, है ना। उपादान जो हो चुका है, अर्थात अटैचमेंट जो हो चुकी है, अटैचमेंट हो चुकी है अभी, और साइकिल पीछे नहीं हो सकती है, अटैच हो चुके हो। तो अटैच क्यों हुए थे? तो अटैच हुए थे आप लोग अपनी इच्छाओं के कारण से। इच्छा जब तक नहीं रहती है तब तक अटैचमेंट नहीं हो सकती है। पर सिर्फ इच्छा से अटैचमेंट नहीं होती है। जो इच्छा बार बार उत्पन्न हो रही है, एक ही इच्छा जब बार बार उत्पन्न होती है और बहुत लंबे समय के लिए उत्पन्न होती है, तब जाके वो इच्छा अटैचमेंट का रूप लेती है। अटैच आप एक दिन में किसी से नहीं हो जाते हैं, है ना। उदाहरण था, कोई एक व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति से आपने बात कर लिया, आप अटैच नहीं होते, ठीक है। पर उस एक व्यक्ति से बात करके आपको अच्छा लगा, फिर भी आप अटैच नहीं होते हो। पर उस एक व्यक्ति से बात करके जब अच्छा लगा तो उससे और एक इच्छा उत्पन्न होती है फिर से बात करने की। अभी भी आप अटैच नहीं हुए। अटैच कब हुए? जब आपको उस व्यक्ति से पहली बार बात करके अच्छा लगा और उससे इच्छा उत्पन्न हुई फिर बात करने की, और फिर आपने दूसरी बार बात किया, है ना। तो दूसरी बार जब बात किया तो आपने अपने डिजायर को स्ट्रॉन्ग किया, अभी भी अटैचमेंट नहीं हुई है, ठीक है। फिर दूसरी बार भी जब आपको बात करके सुख मिला, आपको एंजॉयमेंट मिला, फिर से आपको फिर से बात करने की इच्छा होंगी। और अभी क्या हो रही है? अभी एक ही इच्छा को बार बार उत्पन्न करने के लिए फ्यूल मिल रहा है। और ये इच्छा जब बार बार उत्पन्न हो रही है और वो इच्छा को आप कंप्लीट भी कर रहे हैं और वो उसे सुख भी मिल रहा है, तब जाके आपका अटैचमेंट बनता है। इसलिए बुद्ध तृष्णा की परिभाषा करते हुए बड़ी सुंदर, विश्व की इतनी सुंदर परिभाषा आपको तृष्णा की, डिजायर की कहीं नहीं मिलेंगी। पैशन की इतनी सुंदर परिभाषा कहीं नहीं मिलेंगी, वो आपको चार आर सत्य मिलेंगी। तो कितनी प्यारी परिभाषा की है कि तत्र तत्र अभिनंदिना, नंदिराग सहगता और पौर्ण भाविका। ये तीन शब्दों में बुद्ध ने बता दिए कि अटैचमेंट कैसी होती है, कितनी हानिकारक होती है, और कैसी आपकी अटैचमेंट निर्माण होती है। तो सबसे पहले अटैच होने से बचो। हम किसी भी व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं। अटैच कब हुए? जब हमने अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं किया। हम समझे नहीं कि भाई मुझे बात करने का मन कर रहा है, मुझे साथ रहने का मन कर रहा है, बट क्या उसके साथ के खतरे के साथ भी मैं वाकिफ हूँ? हम लोग अपने सुख के साथ चले जाते हैं कि यहाँ से जो सुख मिल रहा है, और जो छोटे छोटे सुखों के साथ इस प्रकार से अटैच हो जाता है, उसको आगे जाके बड़ा दुख मिलना ही मिलना है। भले उसने तो बड़ा सुख प्राप्त नहीं किया होगा, पर उसे बड़े दुख के लिए तैयार होना आवश्यक है, क्योंकि ये छोटे छोटे सुख उसके जीवन में बड़ी बड़ी आसक्तियां निर्माण करेंगे। थेम्मा थेम्मा तड़साचे,
बूंद बूंद से तालाब बनता है, और वो बूंद बूंद से प्रवेश करते हुए तो बूंदी है, याद रखिएगा, आपके हृदय में प्रवेश करते हुए वो बूंद थी, पर वो बूंद आपके हृदय में महासागर बनती जा रही है। हमको लगता है छोटी सी तो बात है, कई बार जब अपने शिष्यों से वगैरह बात करते रहता हूँ या लोगों को समझाते रहता हूँ तो लोग मुझे यही कहते हैं, छोटी सी तो बात है बंटी जी, ऐसा क्या हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है ना, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। इमोशंस में आप कॉन्शियस नहीं रह सकते। कई बार मैं कुछ कुछ शिष्यों को समझाता हूँ कि आप बात ही मत करो, सबसे अच्छा रहेगा, तो बोलते नहीं नहीं बंटी जी, हम कंट्रोल कर सकते, इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। थॉट्स एंड इमोशंस में अंतर होता है। साइकोलॉजी में जब आप पढ़ते हैं तो आप बताया जाता है कि दिस इज थॉट्स और दिस इज इमोशन। पर ह्यूमन लाइफ जीते हुए, सांसारिक लाइफ जीते हुए, व्यक्तियों के साथ डील करते हुए हम ये बात भूल जाते हैं कि थॉट्स क्या है और इमोशंस क्या है। कई बार लोग अपने इमोशंस को थॉट समझ बैठते हैं और इस कारण की वजह से और गर्त में गिर जाते हैं। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स को हटा सकते हैं, पर आप अपने इमोशंस को हटा नहीं सकते हैं। ये बात समझना इंसान अक्सर भूल जाता है। लोग लगता है कि ये हम हटा देंगे, नहीं, थॉट हटा सकते हैं बट इमोशन हटा नहीं जा सकते, क्योंकि इमोशंस बॉडी में स्टोर्ड है। इमोशन सिर्फ कॉन्शियस चीज नहीं है, इमोशन एक पैसिव चीज भी है, एक अनकॉन्शियस चीज भी है, क्योंकि वो आपके बॉडी में भी रिएक्ट करता है, आपके कई सारे हार्मोन्स भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इमोशंस एक बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, संखार होते हैं। संखार ऐसा नहीं कि आपने थॉट जैसा हट जाए, वैसे इमोशंस नहीं हटते हैं। तो इसलिए जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो दुख जमा होता है वो थॉट से कम, इमोशन ज्यादा होता है। इसलिए बुद्ध ने जब तृष्णा की परिभाषा किए तो बुद्ध ने पहले सत्य में कहा दुख समुदय। बुद्ध कहते हैं कि दुख जमा होता है, आपको दुख एक दिन में प्राप्त नहीं होता है। अटैचमेंट जो आपको दुख दे रही है वो अटैचमेंट हो चुकी है तब जाके दुख दे रही है, आपको डिजायर्स के रूप में दुख नहीं देती है। तन्हा से ज्यादा दुख उपादान से प्राप्त होता है। जब वो अटैच्ड हो जाओगे तब दुखे मिलेगा। अगर आपने डिजायर्स के समय में कंट्रोल कर लिया कि जब बार बार डिजायर उत्पन्न हो तब जान लिया अरे मेरे तो बार बार डिजायर उत्पन्न हो रहा है, ये डिजायर हटाने की जरूरत है। तो सबसे पहले जब आप किसी व्यक्ति से अटैच होने वाले हो तो सबसे पहले अगर आपने डिजायर्स को लेकर व्यक्ति कॉन्शियस रहा तो वो अटैच होगा नहीं। अटैच होने के पहले, किसी भी व्यक्ति से अटैच होने के पहले उसे नापो, तोलो, हर तरीके से देखो, हर तरीके से जानो, कई लोगों से राय लो, है ना, क्योंकि लव समान चीज होती नहीं बुद्धिज्म में, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज अटैचमेंट। जब आप बुद्धिज्म को अच्छी प्रकार से पढ़ लेते तो आपको समझ जाता है कि आप इस संसारिक दुनिया जिसे लव बोल रही है तो attachment है। और वो अटैचमेंट कैसी बनी है, बार बार डिजायर उसी डायमेंशन में, उसी डायरेक्शन में उत्पन्न होने से। और वो डिजायर में चलते हैं, और वो व्यक्ति नहीं होता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, व्यक्ति से समय बिताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने डिजायर्स को हैबिट बना दी थी ना। हमने एक डिजायर्स की हैबिट बना दी थी कि डिजायर ऐसे उत्पन्न होने चाहिए। आप देखो, फिर वो नॉर्मल सा टहलना भी क्यों ना हो, आप देखिए जो इंसान रोज सुबह सुबह टहलने जाता है, अब डिजायर हो चुके हैं, और जिस दिन टहलने ना जाए उस दिन लगता है पूरा दिन बेकार गया। तो फिर टहलने से ही प्रेम है क्या, हम कह सकते हैं क्या? नहीं, वो है अटैचमेंट। तो अटैच हो गए हो तो अटैच इसी कारण हुए कि बार बार डिजायर उत्पन्न होने। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी इसके जो वेज है डिटैच होने के, आप कभी भी याद रखिएगा, कीचड़ में रह के अगर आप अपने प्रकार, अगर आपको अगर अपने आप को साफ करना है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कीचड़ से निकलना पड़ेगा। तो जिसको डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले उसको दूर रहना सीखना होगा।
उसको उस व्यक्ति से, उस वस्तु से दूर होना होगा। ना देखे तो अच्छा है, ना बात करे तो अच्छा है, ना सोचे तो अच्छा है। और सोच आ भी रही है तो आपको ऐसे होल्ड करना होगा उस व्यक्ति को लेके, उस वस्तु से, जिससे कि आपको उस व्यक्ति से बात करने का मन ना करे, जिससे कि आपको उस वस्तु को देखने का मन ना करे, है ना। एक बड़ी प्यारी साधना होती है समाधि के क्षेत्र में, हम उसे कहते हैं अशुभ भावना। बहुत प्यारी है। जब टैच होना होता है तब बुद्ध सिखाते हैं अशुभ भावना, कि अशुभ भावना देखो, गंदगी देखो, है ना। तो अगर कि हम अशुभ भावना कर सके तो हमने क्या करना चाहिए, हमने व्यक्ति के ड्रॉबैक्स देखने चाहिए, कि अगर वो व्यक्ति में आया रहता तो क्या हानियां हुई रहती मेरी, क्या लूज हो। इस प्रकार से देख शुरू करता, इस प्रकार से सुनना, तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं होगा। तो जब वो इस प्रकार से प्रैक्टिस करना शुरू करता है तब जाके क्या होता है, उसका डिटैच होना शुरू होता है। पर आप पटिज समुत्पाद में, जो कि हम जानते हैं कि पटिज समुत्पाद दो बार आता है, एक इसमें जिसमें दुख का समुदय होता है, और दूसरे इसमें जिसमें दुख का निरोध होता है। तो दुख का निरोध के वक्त जब बुद्ध बोलते हैं तो पाली में और एक वर्ड ऐड कर देते हैं, उसमें कहते हैं अविद्या अशेष विराग निरोधा। अर्थात कि अविद्या अशेष और विराग, ये दो शब्द समझना होगा यहाँ पे। अविद्या ऐसे खत्म नहीं करनी तो अशेष, थोड़ी सी भी शेष नहीं रहनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शेष रहेगी, थोड़ी सी बच गई तो फिर उत्पन्न होंगी। और विराग, डिटैच होने चाहिए पूरी तरीके से। अगर ये दो भाव नहीं हुए तो फिर से बार बार उत्पन्न होता रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि जब तक आपको पूर्ण रूप से आप डिटैच ना हो जाओ तब तक बिल्कुल भी मत जाओ उधर, है ना। या ऐसी बात हो जाती है कि जब तक आपके पास लाइफ जैकेट ना हो, है ना, और लाइफ जैकेट के साथ साथ स्विंग भी ना आए, दोनों बातें जरूरी है, लाइफ जैकेट भी होना जरूरी है और स्विमिंग आना भी जरूरी है। तो ये दोनों बात जब हो तभी नाव में बैठो, ऐसी वाली बात हो जाती है अटैचमेंट की फिलोसफी में। आप बोलोगे मेरे पास लाइफ जैकेट है और काम हो जाएगा, नहीं होगा। आप बोलोगे मुझे तैरना आता है पर लाइफ जैकेट नहीं है, नहीं होगा काम, डूबना पक्का है। तो इस प्रकार की भावना, इस प्रकार का एक खुद को लेके एक मैच्योरिटी रखनी पड़ती है जब आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। तो विदाउट मैच्योरिटी आप कभी भी कॉन्शियसली डिटैचमेंट की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो मैच्योरिटी किस बात की चाहिए, मैच्योरिटी खुद के इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग को लेके, खुद को कितना समय लगता है। और 99.999% लोगों के प्रति मुझे ये अश्योर कह सकता हूं कि व्यक्ति नहीं कर पाता है ये बात। 90% लोग जो होते हैं खुद को लेके इग्नोरेंस में होते हैं। क्योंकि जब खुद को जानने की बात आती है, जब खुद के मैच्योरिटी की बात आती है, तो इंसान खुद को समझने की कोशिश करता है। अगर आपको खुद को समझना है तो सबसे पहले इमोशंस को समझो कि इमोशंस कैसे होते हैं। फिर वो इमोशन मेरे में उत्पन्न होगा तो कैसा होगा। इंसान क्या करता है कि खुद को समझने की कोशिश करता है, बोलता है कि नहीं मैं ये सह लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अरे आप आप एक अलग व्यक्ति होते हैं, आप एक अलग बात होते हैं, और इमोशन एक अलग बात है। जब वो इमोशन आपके आप में उत्पन्न हुआ है तो आपसे सारी हरकतें कराएगा, सारे काम कराएगा। इसलिए जब अभिधम्मा पढ़ते हैं तो आप इमोशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनिंग, रूट कॉज, ये सब पढ़ाया जाता है अभिधम्मा में साइकोलॉजी के रूप में। आप जो होंगे वो मैटर नहीं करता है। अगर आपके मन में इमोशन उत्पन्न हुआ है तो आपको उस प्रकार की सफर होना ही पड़ेगा। आप वो सफरिंग से बच नहीं सकते। इसलिए जो अरहंत होता है उसकी उसमें वैसे वाले इमोशंस उत्पन्न नहीं होते, वो इमोशन उत्पन्न होने का रास्ता ही बंद हो जाता है। तो जब आप डिटैचमेंट की फिलोसफी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उन इमोशन से दूर होना होगा। आप इमोशन की डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हुए उस व्यक्ति के साथ, उस वस्तु के साथ है, नहीं हो पाएगा। अब फिर उसमें अब ये बातें बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह के इंसान हैं, है ना। अगर आप बोलने वाले व्यक्ति हैं या शांत रहने वाले व्यक्ति, ये बात बहुत मैटर करती है डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हुए। और इसके आधार पर आपको डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी होती है। तीसरी बात, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते हुए हमेशा
एक व्यक्ति आवश्यक होता है संसार में। जो सन्यास है उसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए। पर सन्यास में जो नहीं है, जो गृह त्यागी नहीं है, वो संसार में है, तो उस डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए कल्याण मित्र लगेगा ही लगेगा। बिना कल्याण मित्र के डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इमोशन एक फ्लो होते हैं, और फ्लो में आप कहते हैं ना, नहर नहर गांव में कैसे नहर होती है, नहर में एक बार उतर के डूबोगे ही डूबोगे आप, क्योंकि नहर में पकड़ने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है जिससे कि आप पकड़ के रख सको प्रवाह में, क्योंकि नहर में प्रवाह बहुत होता है और प्रवाह में इंसान बह जाता है। और प्रेम कहो या इमोशन कहो, ये प्रवाह होता है, और अगर इस प्रवाह में आप बहना नहीं चाहते तो आपको कल्याण मित्र की आवश्यकता होगी। बिना कल्याण मित्र के संसार में डिटैचमेंट की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं। और वो जो कहता भी होगा कि मैं डिटैच हुआ, अगर डिटैच नहीं हुआ, उसके उसमें कुछ ना कुछ कार्य होंगे होंगे, और वो कभी ना कभी किस ना किस रूप में निकलेंगे। क्योंकि मैंने आज जितने लोग देखे हैं, कोई भी कंप्लीटली हील नहीं हुआ है। बिना कल्याण मित्र के आप कंप्लीटली हील नहीं हो सकते। प्रॉपर समय समय पे गाइडेंस लगती है उसमें, क्योंकि प्रॉपर समय समय पे कई सारे इमोशंस, कई सारे थॉट्स, वो एक पोयम है ना, रोड नॉट टेकन, वैसी वाली बात हो जाती है कि पछतावे इधर के भी होते हैं, पछतावे उधर के भी होते हैं। तो जो आपको कॉन्शियसली थॉट डेवलप कर सके उस नेगेटिव दिशा में, वैसा कल्याण मित्र बहुत आवश्यक होता है। तो डिटैचमेंट की जो प्रैक्टिस है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रैक्टिस होती है संसार में, क्योंकि अगर जिसको आसानी सीख गया तो डिटैचमेंट की फिलॉसफी प्रैक्टिस करना सीख गया, वो तो सन्यासी ले लेगा, वो कभी संसार में रह नहीं सकता। हम संसार में क्यों है? क्योंकि हम अटैचमेंट पे विश्वास रखते हैं, हम अटैच जल्दी हो जाते हैं, हम अटैचमेंट चाहते हैं, इसलिए हम संसार में हैं। ये नहीं तो कोई ना कोई अटैचमेंट चाहते हैं। जिस दिन से डिटैच होना सीख गए, डिटैचमेंट की फिलोसॉफी सीख गए, उस दिन आप संन्यास लेना पसंद करेंगे। तो अटैचमेंट की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले आपको खुद को जानना होगा, इमोशंस को जानना होगा, और अपने डिजायर्स को लेके कॉन्शियस रहना होगा। जब भी किसी के प्रति मन झुक रहा है, कम से कम, और जो व्यक्ति इतना भी सावधान है अपनी जिंदगी में कि वो जानता है कि मेरा मन इस इंसान के प्रति झुक रहा है, पर क्यों झुक रहा है, इस सवाल जब वो करता है, तो धीरे धीरे करके वो उस रिलेशन में भी क्या होगा, थोड़ा बहुत तो कॉन्शियस रहेगा, वो थोड़ा बहुत तो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस वहां पे कभी ना कभी कर पाएगा। पर जो फ्लो में गया, उसका भरोसा नहीं। तो ये बातें व्यक्ति ने समझा तो व्यक्ति का क्या होगा, भला होगा। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। थैंक यू भंते जी, आपने डिटैचमेंट के बारे में बात कही। So Bhante ji, detachment in Pali, is that the Vairagya and the Viveka? Is that the correct No, translation? there are 7 8 stages. For detachment, there हाँ are 7 8 words. Not only virag. There is हाँ virag, nirved, and so virag, nirved, and upekha. So many words. हाँ हाँ। And there is stages, not only one word. These are stages. आपको अरेंज करना पड़ेगा उसको बराबर, एक के बाद एक। तो गुड 7 गुड अवस्थाओं से होके गुजरता, तब जाके निर्वाण प्राप्त होता है। गुड गुड। सो भंते जी, अ, यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में लेट इट गो का प्रिंसिपल काफी है। हम्म। लेट इट गो मीन्स भूल जाओ कुछ चीजों को, यस। लेट इट गो यानी। तो वो और डिटैचमेंट में क्या अंतर है? सी, लेट गो एक जो है ना, एक बहुत ही आउटर चीज एक बहुत ही मोटे पैमाने पे काम करने वाली चीज है ना, जो ऑलरेडी अंदर तक जा चुकी है चीज, उसमें आप लेट इट गो नहीं कर सकते। जो चीज अभी आई है आपके जीवन में, उसी को लेके आप लेट इट गो कर सकते हो। पर जो चीज बहुत लंबे समय से आप जिंदगी में रही है, उसको लेके आप लेट इट गो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि लेट इट गो के पीछे कोई सिस्टमेटिक फिलोसॉफी नहीं है, एक ऑर्डर ऑर्गेनाइज नहीं है कि प्रैक्टिस कैसे करे। जो फिलोसॉफी आई है लेट इट गो, उसकी प्रैक्टिस अप्लाइड फिलोसॉफी में अभी तक वो उसका सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है अवेलेबल। उसको कैसे प्रैक्टिस करें ये पता नहीं लोगों को। तो जब ये बात उठेंगी तो उनको बुजम के पास से आना पड़ेगा कि कैसे प्रैक्टिस कर लेट इट गो को। थैंक यू।
Any other questions? Please raise your hand or type your question. Yeah, Charudatta, please go ahead. Yeah, we are not able to hear you. Charudatta, can you say something? You are unmuted. आपका आवाज नहीं आ रहा है. Yeah, looks like he just unmuted by himself. Looks like. Any other questions before we go to the next session? On the topic detachment. So बंते जी, इस टॉपिक को आप और सविस्तर में लीजिए, अच्छा रहेगा. जी जी, श्योर श्योर. एक एक टॉपिक को लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें भी काया फिजिकल डिटैचमेंट है, चित्ता है, यस अरूपा यस भी है. यस, तो इसमें अलग अलग जो टॉपिक है, आप थोड़ा इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे तो अच्छा रहेगा. तो श्योर श्योर श्योर. ओके, उसको जस्टिस मिलेगा डिटैचमेंट को. बट थैंक यू वेरी मच Bhante ji for joining it today. इट्स अ And प्लेजर. थैंक on behalf of all the participants, Bhante ji, sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much. Now I will request Kranti Didi to